Assalamu alaikum, students. I hope you are all doing well and I hope कि कल के लेक्चर्स की आपको समझ आ गई होगी। तो कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। So let's start with Bismillahir Rahmanir Rahim. So today is our, I think it's fifth lecture, and today is Friday, 17th April 2020, and I am recording this lecture for BS Zoology 4th. So in previous lectures we have discussed about the what is behavior and what is the scope and significance of behavior in different fields of life. Today we will start the types of behavior. That what are the types of different types of behavior. Basically there are three main types of behavior. The first one is stereotype behavior, the second is learning behavior, and the third is social behavior. So animals, mostly animals, I have already told you that in this course we will study the behavior of all animals except human beings. So uh, animals show three types of main behavior: stereotype behavior, learning behavior, and social behavior. Stereotype behavior is a stimulus based behavior, while the learning behavior is which that behavior which an organism acquired during its lifetime. And social behavior, you know that we have different animals that lives in social groups, like एलिफेंट्स हैं और हमारे पास लाइन्स हैं। इसी तरह हमारे पास अगर इंसेक्ट्स देखें तो बहुत से सोशल इंसेक्ट्स हैं, जिसमें हनी बीज आती हैं, एंड्स आती हैं। तो उनमें जो वो अपनी कॉलोनी में और अपने उस ग्रुप में जो एनिमल डिफरेंट किस्म के बिहेवियर शो करते हैं, तो उसको हम सोशल बिहेवियर कहते हैं। So let's start with very first type of behavior, that is stereotype behavior. So what is stereotype type behavior? It is a stimulus based behavior that for this behavior you might need a type of stimulus. Like अगर stimulus नहीं है तो ये behavior नहीं होगा। तो किसी भी stimulus के against organism जो भी response show करेगा उसको हम stereotype behavior कहेंगे। कुछ किसी भी किस्म का stimulus हो, आपने ऑर्गेनिज्म या किसी भी एनिमल को कोई स्टिमुलस शो कराया, उसके अगेंस्ट वो जो भी रिस्पॉन्स शो करेगा उसको हम स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर कहेंगे। सो व्हाट इज स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर? इट इज अ स्टिमुलस बेस्ड behavior. And what is stimulus? As you all know that any change in the environment, आपके environment में कोई भी change हो जाए उसको हम कहते हैं stimulus. So we have further subtypes of stereotype behavior. The very first type is the irritability. What is irritability? The ability of an organism to respond to a stimulus is called sensitivity or irritability. Like irritability is also known as sensitivity. कि हमारे पास कोई भी organism उसकी जो ability होती है to respond any kind of stimulus, this is known as irritability. So this irritability is found in लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोन्स एंड पैराजोन्स। जो हमारे पास लोअर एनिमल्स हैं प्रोटोजोन और पैराजोन, उनमें प्रेजेंट हैं, वाइल मेटाजोन्स में इतना खास ये बिहेवियर प्रेजेंट नहीं होता। अब प्रोटोजोन और पैराजोन क्या है, हमारे पास एनिमल किंगडम को थ्री मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: प्रोटोजोन, पैराजोन एंड मेटाजोन। बास को पता होगा और बास के लिए मैं एक्सप्लेन करूँ। प्रोटोजोन कौन से हैं? प्रोटोजोन्स में तमाम यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, एंट अमीबा है, ठीक है, ये सारे ट्राइपेनोसोमा वगैरह, तो सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स आपके पास प्रोटोजोन्स हैं। उसके बाद आते हैं पैराजोन। पैराजोन में एक ही फाइलम है, फाइलम पोरिफेरा के। पैराजोन्स हम किसे कहते हैं? लाइक जो मल्टी सेलुलर तो हो लेकिन उसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ना हो। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहते हैं? कि हमारे पास सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स हो विच परफॉर्म कॉमन फंक्शन। बहुत किसी भी सेल्स का ग्रुप इकट्ठा हो जाए और वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। अब प्रेफरेंस में हर सेल मल्टी सेलुलर तो है लेकिन हर सेल जो है वो इंडिविजुअली काम कर रहा है,
तो इसीलिए हम उनको पैराजोन्स कहते हैं। सो प्रोटोजोन्स आर all living unicellular animals are known as protozoans. All animals in which are multicellular but don't have any tissue organization, they are known as parazoans। और पैराजोन्स में हमारे पास सिर्फ फाइलम पोरिफ्रा के मेंबर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास स्पॉन्जेस हैं, साइकोन वगैरह है। और उससे ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेट और आगे, उनको हम मेटाजोन्स कहते हैं। एंड मेटाजोन्स हमारे पास क्या है? दोज एनिमल्स विच आर मल्टीसेलुलर एंड हैव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, उनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसको हम मेटाजोन्स कहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास अमीबा है जो यूनिसेलुलर एनिमल है एंड इट इज़ नोन एज प्रोटोजोन। और ये हमारे पास स्पॉन्जीज हैं लाइक साइकोन वगैरह है उसमें, ठीक है। तो ये स्पॉन्जीज जो है हमारे पास पैराजोन्स है, लाइक मल्टी सेलुलर तो हैं बट इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारे पास हम कह रहे हैं इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी किसे कहते हैं? सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। अब हमारे पास जो प्रोटोजोन और पैराजोन है या पोरिफ्रंस हैं, दे लैक नर्वस सिस्टम। हमारे पास इनमें जो है नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, बट दे आर कैपेबल ऑफ रिसीविंग स्टिमुलाई। लेकिन फिर भी ये डिफरेंट स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, लाइक जो हीट है तो ये हीट से दूर हो जाते हैं, केमिकल्स हैं और टेम्परेचर वगैरह है तो ये उसको, इनका जो साइटो लाइक जो प्रोटोजोन है उनका साइटोप्लाज्म है वो जो है स्टिमुलस रिसीव करने की पावर रखता है, ठीक है। लाइक केमिकल से दूर जाना या केमिकल की तरफ आना, लाइक अगर कोई एसिड है तो आप एसिड डालें तो आपको नजर आएगा कि अमीबा जो है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट एसिड, तो इसका मतलब है कि वो स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है। लेकिन अगर आप ग्लूकोज का सिरप डालें देन यू विल सी के अमीबा जो है वो उसकी तरफ मूव कर रहा है केमिकल के, तो इसका मतलब है कि वो स्टिमुलस रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटोजोन और पेरिफेरल्स में नर्वस सिस्टम तो नहीं है, लेकिन वो स्टिमुलस को रिसीव भी करते हैं और उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड भी करते हैं। अब हमारे पास इरिटेबिलिटी की सिग्निफिकेंस क्या है? इरिटेबिलिटी क्या करती है? इट इंक्रीजेज सर्वाइवल वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल वैल्यू इंक्रीज होती है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई जगह है, अमीबा मूव कर और वहां पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हीट इंक्रीज हो रही है, वो जो सरफेस है गर्म होती जा रही है। तो अगर ये उसको फील नहीं करेगा तो फाइनली इतनी गर्म जगह पे चला जाएगा जहां पे जल के मर जाएगा, ठीक है। लाइक अगर वो फील कर रहा है कि भाई एसिड आ रहा है, कोई हार्मफुल केमिकल है, तो अगर उससे दूर नहीं भागेगा तो वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी। तो एक तो इरिटेबिलिटी इनकी जो है सर्वाइवल रेट को या सर्वाइवल वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म को इंक्रीज करती है। दूसरा क्या चीज? बाय द वर्च्यू ऑफ इरिटेबिलिटी प्रोटोजोन्स एंड पोरिफेरल्स कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एडिबल एंड नॉन एडिबल थिंग्स। यही इरिटेबिलिटी की वजह से जो हमारे पास प्रोटोजोन्स और पोरिफेरल्स हैं, दे डिस्टिंग्विश बिटवीन एडिबल एंड नॉन एडिबल थिंग्स। लाइक एडिबल थिंग्स वो हैं कि जो खाने के काबिल हैं। तो हमारे पास जो प्रोटोजोन और पेरिफेरल्स है, चूंकि इनका नर्वस सिस्टम नहीं है, ना इनकी आईज हैं कि ये देख सकें कि ये चीज खाने की है नहीं खाने की, ना ही इनके पास नोज है कि स्मेल से पता कर सकें, तो सिंपल इनमें इरिटेबिलिटी का एक प्रॉपर्टी है जो जिसको हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो ये सिंपली जैसे ही कोई भी पार्टिकल जो है आके इनकी बॉडी के साथ टच करता है, तो इस इरिटेबिलिटी की वजह से, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये जो पार्टिकल है आइदर इट इज फूड, इसको खाना है, या इट इज नॉट फूड और इसको खाना नहीं है। तो कौन सी चीजें खानी है और कौन सी चीजें नहीं खानी, उसके दरमियान डिस्टिंग्विश जो है वो भी करते हैं हमारे पास प्रेफरेंस और प्रोटोजोन्स विद द हेल्प ऑफ इरिटेबिलिटी, ठीक है। तो क्या है हमारे पास इरिटेबिलिटी? कि हमारे पास the ability of an organism to respond to a stimulus and it is also known as sensitivity। और ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? प्रोटोजोन एंड पैराजोन, या जो हमारे पास फाइलम प्रोटोजोआ और फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स हैं उनमें ये चीज पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? बिकॉज दे डोंट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन फिर भी ये स्टिमुलस को रिसीव भी करते हैं और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। आई होप कि ये वेरी फर्स्ट टाइप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप, that is taxes। So taxes, how we can we define taxes? Tax orientation movement of an organism in a straight axis with respect to the source of stimulation। orientation movement के किसी भी organism की कोई भी movement है in a straight axis, सीधे रास्ते पे, with respect to the source of stimulation। orientation means path change करना, ठीक है।
किस पे? इन रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन, लाइक जो भी सोर्स है स्टिमुलेशन की, मोस्टली हम जो कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक तरफ लाइट है, ठीक है, हमने टॉर्च से और एनिमल पे लाइट प्रोजेक्ट की। अब अगर वो लाइट की, या तो वो लाइट की तरफ मूव करेगा या फिर लाइट से अवे मूव करेगा, तो हमारे पास ऐसी मूवमेंट को टैक्सिस कहते हैं कि सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन की बेस पे क्या करे, ऑर्गेनिज्म ओरिएंट करे और स्ट्रेट एक्सिस में ओरिएंट करे विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। अगर आप आगे पढ़ें, टैक्सिस में बी आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। अब वो जो लाइट हमने ऑर्गेनिज्म में मारी, अब अगर वो हमारे पास या तो वो लाइट के टुवर्ड्स मूव करेगा या फिर वो लाइट से अवे मूव करेगा, और इसी बेस पे हमारे पास टैक्सेस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कि लाइक अगर हमारे पास वो एनिमल सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन की तरफ मूव कर रहा है, देन वी विल से इट पॉजिटिव टैक्सेस, और अगर वो उस सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन से दूर मूवमेंट कर रहा है, देन वी से इट नेगेटिव टैक्टिंग मूवमेंट या नेगेटिव टैक्सेस, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन के हिसाब से ओरिएंट करे, एंड इट विल ओरिएंट इन स्ट्रेट एक्सिस, सो दैट टाइप ऑफ behavior is known as a taxes, ठीक है, and taxes is the second subtype of stereotyped behavior, और taxes हमारे पास either it will be either towards the stimulus or away from the source of stimulation, or it may be positive or negative depending upon the response of that organism. So we have further subtypes of taxes, like the very first type of taxes is clinotaxis. What is clinotaxis? The movement of an organism or animal in response to a stimulus. ये तो बात हो गई टैक्सेस की कि भाई स्टिमुलस की बेस पे रेस्पॉन्स है और या उसकी मूवमेंट है। Where an animal compares the intensity of light through lateral sides of the body. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एनिमल इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस वेयर एनिमल कंपेयर्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू लेटरल साइड्स ऑफ द बॉडी। ये वो मूवमेंट है कि हमारे पास एक तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन उस रिस्पॉन्स, वो जो स्टिमुलस है उसकी इंटेंसिटी को वो मेजर करता है विद द लेटरल साइड्स ऑफ द बॉडी। लाइक अगर हम एग्जांपल पढ़ेंगे देन वी कैन अंडरस्टैंड। सो फॉर एग्जांपल, ब्लोफ्लाई लार्वे सर्च फॉर अ डार्कर प्लेस टू प्यूपेट। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेटामॉर्फोसिस होती है, और हमारे पास मेटामॉर्फोसिस हम किसे कहते हैं, इसमें हमने इनकम्प्लीट पढ़ी थी और कंप्लीट पढ़ी थी। तो जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है उसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो 4 स्टेजेस से गुजरता है। लाइक ऑर्गेनिज्म जो एडल्ट है वो फिर एग हैच करता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर जो एग है, फर्टिलाइज्ड एग, उससे लार्वा हैच करता है, और लार्वे से फिर प्यूपा बनता है। तो अब जो ब्लो फ्लाई के लार्वे हैं, ठीक है, ब्लो फ्लाई के लार्वे जब उन्होंने प्यूपेशन करनी होती है या प्यूपा में कन्वर्ट होना होता है, देन दे सर्च फॉर अ डार्कर प्लेस। तो उनको क्या चाहिए? डार्कर प्लेस चाहिए। द आईज ऑफ दीज लार्वे डोंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ, या सॉरी वी कैन राइट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ब्लो फ्लाई लार्वा, जो हमारे पास फ्लाइज हैं, जितनी भी फ्लाइज, लाइक हमारे पास ये क्लास इंसेक्टा का ऑर्डर डिप्टरा है, ऑर्डर डिप्टरा में हमारे पास सारी फ्लाइज आती हैं। इन सारे, जिस तरह मैंने ऐसे कहा बटरफ्लाइज और मॉथ्स के लार्वों को हम कैटरपिलर्स कहते हैं, इसी तरह जितनी भी फ्लाइज हैं उनके लार्वों को हम मैगट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्लो फ्लाई के लार्वा है, इट सर्च फॉर अ डार्कर प्लेस फॉर प्यूपेशन, कि जब भी उसने प्यूपेट होना होता है या प्यूपा में चेंज होना होता है, तो लार्वा डार्कर या अंधेरे वाली जगह ढूंढते हैं। तो अब जो उसकी आईज हैं वो लाइट की इंटेंसिटी के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड उसको नहीं करती, तो उसके पास जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो उसकी लेटरल साइड्स ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करता है कि वो जैसे ही थोड़ा मूव करता है उसके बाद क्या करता है, एक तरफ सर घुमाता है, फिर दूसरी तरफ सर घुमाता है, और लेटरल साइड्स ऑफ बॉडी से अपनी दोनों तरफ की लाइट इंटेंसिटी को कंपेयर करता है। तो जिस तरफ लाइट की इंटेंसिटी कम होती है फिर उस तरफ मूव करता है।
फिर वहां जाके फिर कंपेयर करता है, फिर और जिस तरफ ज्यादा कम होती है फिर उस तरफ मूव करता है, और इस तरह कम लाइट इंटेंसिटी की तरफ जाते जाते फाइनली वो डार्कर रीजन में पहुंच जाता है और वहां पे जाके वो प्यूपेट करता है। मोस्टली लार्वे जो है डार्कर रीजन या डार्कर प्लेस में जाके प्यूपेशन क्यों करते हैं? बिकॉज जो प्यूपा है इनका वो ना तो मूव कर सकता है और ना ही कुछ खाता है, यानी कि एक जगह बस ठहरा रहता है, एक्टिविटी नहीं होती। तो अगर वो ओपनली ऐसे खुले में जब अगर वो प्यूपेट करेंगे तो कोई भी प्रीडेटर आके उनके प्यूपा को खा जाएगा, बिकॉज वो तो मूवमेंट कर नहीं सकता। तो वो क्या करते हैं कि डार्कर रीजन को सर्च करते हैं ताकि कोई छुपी हुई जगह हो जहां पे जाके वो प्यूपेट कर सकें। तो ये क्लाइनोटैक्सिस है कि हमारे पास इसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो लेटरल साइड ऑफ बॉडी से स्टिमुलस की इंटेंसिटी मालूम करते हैं और उसी स्टिमुलस के हिसाब से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। लाइक एक और पॉइंट है इसमें, if animal moves towards the source of stimulus it is known as positive clinotaxis। like जिस तरह हमने पढ़ा पहले कि अगर ये ब्लो फ्लाई लार्वा या कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइट की सोर्स की तरफ मूव करेगा तो उसको हम पॉजिटिव क्लाइनोटैक्सिस कहेंगे, एंड इफ इट मूव्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस तो इट इज नोन एज नेगेटिव क्लाइनोटैक्सिस। तो हमारे पास जो ब्लो फ्लाई लार्वा है ये यहाँ पे नेगेटिव क्लाइनोटैक्सिस शो कर रहा है, बिकॉज ये लाइट सोर्स से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, डार्कर रीजन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे पास नेगेटिव क्लाइनोटैक्सिस है। ब्लो फ्लाई हमारे पास क्या है, ब्लो फ्लाई अगर मैं यहाँ आपके दिखाऊं, ये हमारे पास ब्लो फ्लाई है। ये मोस्टली आप लोगों ने जो गोश्त की दुकानें होती हैं, लाइक जो चिकन है या आपके पास बड़े या छोटे गोश्त की दुकान होती है, वहां पे आपको ये मिलेंगी। ये हमारे पास कार्निवोरस फ्लाई है, और मोस्टली ज्यादातर क्या होता है कि ये आपका जो गोश्त होता है उस पे ये अपने एग्स ले कर देते हैं, और बहुत छोटे एग्स होते हैं, और अगर उस गोश्त को सही ना पकाया जाए, ठीक है, और इसके एग्स जिंदा हों, तो इसके जो एग्स हैं फिर वो क्या होता है कि गोश्त के साथ आपके पेट में जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट एग्स होते हैं, वो स्टमक के एनवायरनमेंट को इजीली क्रॉस कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि ये एग्स आपके फूड के साथ इंटेस्टाइन में जाते हैं, और इंटेस्टाइन की वॉल्स, म्यूकस वॉल्स के साथ ये क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, और वहीं पे फिर ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं कि अगर इसके जो एग्स हैं वहां पे स्टिक हो गए और इनके एग से लार्वा निकल आया, तो इनका जो लार्वा भी है वो भी कार्निवोरस लार्वा होता है, और वो क्या करता है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पे फीडिंग स्टार्ट कर देता है, और वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर पोर्स बनाता जाता है। तो जितने ज्यादा लार्वे होंगे उतने पोर्स बनते जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर्स हो जाते हैं, तो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है या जो फूड है वो आपकी बॉडी कैविटी में जाने लग जाती है, और जब बॉडी कैविटी में चीज जमा होने लग गए तो वहां पे क्या हो जाता है, एक पॉइजनस फ्लूइड बनने लग जाता है, और वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, तो ये ब्लो फ्लाई लार्वा हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेडिकली इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कंडीशन प्रोड्यूस करती है इंसान की जो है वो बॉडी में, सॉरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो है ये पोर्स डेवलप कर लेती है। एज अ रिजल्ट जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, वो इंस्टेड ऑफ एक्सक्रीटिंग आउट, उनका कुछ पार्ट जो है आपकी बॉडी कैविटी में जाता रहता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से लीक होने लग जाता है, और वहाँ पे वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर लेता है। तो ये बहुत ही खतरनाक मेडिकल कंडीशन होती है, और ये इट कैन लीड टू फेटेलिटी और डेथ। तो इसलिए हमारे पास ब्लो फ्लाई लार्वे या ब्लो फ्लाई जो है ये मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये क्लाइनोटैक्सिस की आप लोगों को समझ आ गई होगी। Now we move to the second subtype of taxes, that is teleotaxis. So what is teleotaxis? First of all we define it. When there are two sources of stimulation, the animal moves towards the one and never in the median position or direction, showing that the influence of one stimulus is totally ignored. ठीक है, ये आगे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो फिर समझ आ जाएगी। द फ्रैंकल एंड गम डिमोन्स्ट्रेट टीलोटैक्सिस रिस्पॉन्स इन हर्मिट क्रैब। They placed hermit crab in between two light sources L1 and L2, provided that the light sources were of same intensity and of same kind. उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था हर्मिट क्रैब पे, और उन्होंने क्या किया था कि हर्मिट क्रैब को दरमियान में रखा था, और इस तरफ दो लाइट सोर्सेज रखी थी, लाइट 1 और लाइट 2, और दोनों की इंटेंसिटी भी सेम थी और दोनों की काइंड भी सेम थी। काइंड किस तरह सेम थी कि अगर एक येलो लाइट है तो दूसरी भी येलो लाइट है थी, एक व्हाइट लाइट है तो दूसरी भी व्हाइट लाइट थी।
तो अब इन्होंने रिस्पॉन्स जो देखा क्रैब का कि अब ये देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज लाइट 1 एंड दिस इज लाइट 2 और ये हर्मिट क्रैब है, तो ये क्या कहते हैं कि जब भी व्हेन देयर इज टू सोर्सेज ऑफ स्टिमुलेशन द ऑर्गेनिज्म नेवर फॉलो द मीडियन पाथ, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज हमने कहा कि टैक्सेस में ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन मीन अपने नॉर्मल पाथ से डाइवर्ट हो जाना, आइदर टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन और आइदर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। अब ये दोनों लाइट्स जो हैं सेम इंटेंसिटी की हैं और सेम टाइप की हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास हर्मिट क्रैब पे डालते हैं तो ये क्या करता है, इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट के दोनों को वो करे, दोनों से अवे मूव करे, ये क्या करता है एक लाइट सोर्स को बिल्कुल इग्नोर करता है और दूसरी लाइट सोर्स की तरफ मूव कर जाता है। यानी कि इस लाइट सोर्स से अगर हम देखें तो ये नेगेटिव टीलोटैक्सिस शो कर रहा है, और अगर इस लाइट सोर्स की तरफ से हम देखें देन इट इज अ पॉजिटिव टीलोटैक्सिस शो कर रहा है। तो वापिस अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, सो व्हेन देयर आर टू सोर्सेस ऑफ स्टिमुलेशन द एनिमल मूव टूवर्ड्स द वन, वो क्या करता है एक की तरफ मूव करता है, एंड नेवर इन द मीडियन पोजीशन, और कभी भी वो दोनों के दरमियान से सीधा नहीं चला जाता, और डायरेक्शन शोइंग दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ वन स्टिमुलस इज टोटली इग्नोर्ड, कि उसने क्या किया कि जो हमारे पास एक स्टिमुलस था उसको टोटली क्या किया, इग्नोर किया। लाइक उस यहाँ पे उसने L1 को बिल्कुल इग्नोर किया और L2 जो लाइट सोर्स है उसकी तरफ उसने मूवमेंट कर ली। तो दिस टाइप ऑफ टैक्सेस इज नोन एज टीलोटैक्सेस। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं, जो it is the third type of taxes, that is menotaxis. So orientation of animal taking place at an angle to the direction of stimulus, अगर हमारे पास किसी भी एनिमल की ओरिएंटेशन हो मीन्स अपने नॉर्मल पाथ से डाइवर्ट करे, टेकिंग प्लेस एट एन एंगल, और वो जो है हमेशा कोई भी सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन है उससे एक एक एंगल बना के चले, तो उसको हम कहते हैं मीनोटैक्सेस। ठीक है, लाइक एग्जांपल से समझ आएगी इस डेफिनेशन की। दिस फिनोमिना इज प्रेजेंट इन होमिंग एंड्स, जो हमारे पास डोमेस्टिक एंड्स हैं, जो घर में एंड्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें मोस्टली ये प्रेजेंट है मीनोटैक्सिस का फिनोमिना। एंड्स ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद द सन व्हाइल ट्रैवलिंग। अब इसमें सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन क्या है, सन है। तो हमारे पास एंड्स जब भी मूव करती हैं या ट्रैवल करती हैं तो वो हमेशा सन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो जैसे जैसे सन मूव कर रहा होता है एंड भी जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। लाइक जब वो धूप में ट्रेवल कर रही होती है, लेकिन अगर छांव में कर रही है तो फिर वो और उसके कोई सोर्सेस ऑफ स्टिमुलेशन होंगे। सो व्हेन एन एंट इज imprisoned फॉर अ कैलकुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अगर वो 90 डिग्री पे सन के साथ मूव कर रही है, आपने वहीं पे उसके ऊपर कोई बर्तन रख दिया और उसको कैद कर दिया। अब एंट तो रुक गई लेकिन जो सूरज है वो आगे चला गया। ठीक है, तो क्या करेगी एंट विल, and when then released the ant deviate from its original path and again make an angle of 90 degrees with the sun। लाइक अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं कि लाइक फॉर एग्जांपल ये एंड जा रही है हमेशा 90 डिग्री, अगर आप देखें ये 90 डिग्री का एंगल है, ये डायग्राम मैंने बहुत मुश्किलों से बनाई है, तो ये सन के साथ 90 डिग्री का एंगल लेके चलती है। अब हमने इसको बंद कर दिया, तो अब ये तो यहाँ बंद हो गई, लेकिन कुछ टाइम के बाद सूरज जो है वो आगे चला गया। नाउ इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दैट स्ट्रेट पाथ, पहले वो स्ट्रेट पाथ में जा रही थी बिकॉज सन 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब चूंकि हमने उसको बंद किया है और सूरज आगे चला गया है, अब इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग इट्स प्रीवियस पाथ, ये जो स्ट्रेट जाती थी, इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, ये जो उसका स्ट्रेट पाथ था उससे डेविएट हो जाएगी और वो जो 90 डिग्री का एंगल है उसको मेंटेन करेगी। लाइक हमारे पास आप इधर देखें, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, अगर ये स्ट्रेट जाती रहती तो हमारे पास एंगल क्या हो जाता, ये अगर आपको एंगल नजर आ रहा हो तो ये स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो इसीलिए ये क्या करती है, ये एंट डेविएट हो गए अपने पास से ताकि सन से इसका एंगल 90 डिग्री का ही बना रहे। सो दैट टाइप ऑफ बिहेवियर इज नोन एज मीनोटैक्सिस, कि जिस टैक्सिस ऐसा बिहेवियर कि जिसमें एनिमल ओरिएंटेशन शो करे और वो ओरिएंटेशन हमेशा किसी सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन के साथ कोई एंगल बना रही हो, तो दैट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन मूवमेंट इज नोन एज मीनोटैक्सिस।
ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने स्टार्ट की बिहेवियर की टाइप। तो सबसे पहले बिहेवियर की टाइप हम पढ़े हैं स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर, जिसमें हम वी से दैट एनी स्टिमुलस बेस्ड रिस्पॉन्स इज नोन एज स्टीरियोटाइप, या स्टिमुलस बेस्ड बिहेवियर इज नोन एज स्टीरियोटाइप बिहेवियर। के कोई भी ऑर्गेनिज्म को आपने क्या दिया, कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपने कुछ स्टिमुलस दिया, तो वो जो भी बिहेवियर शो करेगा उसको हम स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर करेंगे। Then we studied the subtype of stereotype behavior. The very first type is irritability, which is present. It is also known as sensitivity, and it is the ability of an organism to respond to any kind of stimulus. And this type of behavior is present in protozoans and parazoans, या peripherons, in which there is no central nervous system, but still they can respond to a stimulus and they can receive a certain stimulus. The second type of stereotype behavior that we have studied, that is the orientation movement of an organism in response to any stimulus. Like अगर कोई भी stimulus है और organism अपने ओरिजिनल पाथ से ओरिएंट हो रहा है उस स्टिमुलस की वजह से, तो उसको हम टैक्सेस कहते हैं। तो टैक्सेस आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन हो सकती हैं। फिर इसकी हमने टाइप्स पढ़ी। जो पहली हमने क्लाइनोटैक्सिस पढ़ी कि अगर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लेटरल साइड ऑफ बॉडी से स्टिमुलस की जो है इंटेंसिटी को कंपेयर करे, कैलकुलेट करे, और फिर या तो उस स्टिमुलेशन की सोर्स की तरफ मूव कर जाता है या फिर उससे अवे मूव करे, उसको हम क्लाइनोटैक्सिस कहते हैं। अगर हमारे पास फिर हमने पढ़ा इसके टीलोटैक्सिस कि अगर दो सोर्सेज ऑफ स्टिमुलेशन हो और दोनों सोर्सेज ऑफ स्टिमुलेशन की जो इंटेंसिटी है वो सेम हो और टाइप भी सेम हो, तो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है इट विल नेवर फॉलो द मीडियन पाथ। वो कभी भी दरमियानी रास्ता इख्तियार नहीं करता। वो क्या करता है, एक स्टिमुलस को बिल्कुल इग्नोर करता है और दूसरी सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन की तरफ मूव कर जाता है या ओरिएंट कर जाता है। सो दैट टाइप ऑफ टैक्सिस इज नोन एज टीलोटैक्सिस। देन वी हैव स्टडीड द मीनोटैक्सिस। और मीनोटैक्सिस हमारे पास कि जिसमें हमने एंड्स की एग्जांपल ली। इसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन से कोई एंगल बना के मूव कर रहा है, और अगर वो सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन की प्लेस हम चेंज कर लें, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी अपना ओरिजिनल पाथ नहीं फॉलो करेगा बल्कि डेविएट करेगा और उस सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन से हमेशा वो पार्टिकुलर एंगल बना के रखता है। तो इसको हमने कहा मीनोटैक्सिस। सो आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन और घर में रहें। अल्लाह हाफिज़।